Hi guys, this is Keshav Malpani and welcome back to 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss some extremely common problems that a lot of CLAT aspirants made, particularly on the last day of the exam. Now last day here means on the very day of the exam. So on 18th December जब भी आप exam देने जाओगे यहाँ पर, I am going to discuss these problems that you guys commonly would make. So these are certain problems that you can actually avoid to be able to do well in the exam. We have seen a lot of students scoring really well in mock tests. Some of them are not able to score as well as the other students in mock test, and some students are of very high morale. तो अगर आप देखोगे students are scoring consistently in the 90s and or even in the 100s, they have a high morale as compared to somebody who's in the 70s right now. But you need to understand that people who are into 70s, they somewhere know that it's going to be difficult, but it's not impossible obviously. There are a lot of students who are into 70s or in 80s who do really well in the exam. They get into 90s and even into the 100s on the actual day of the exam. Whereas on the other hand, there are certain students who score consistently in 90s and 100s. Very high morale, are going to do really well. But again, on the exam day, they feel a lot of expectations of themselves. ठीक है, not just them, their parents, their mentors, और खुद का भी आपका expectation रहता ही है. So which उस प्रेशर के चक्कर में हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलतियां कर देते हैं एंड वी नॉट एबल टू अटेंटिवली डू दैट पर्टिकुलर एग्जाम. बिकॉज बहुत चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है कि उस दिन अभी एग्जाम नहीं अच्छा होगा तो क्या होगा, व्हाट विल वी डू ऑन दी पर्टिकुलर डे जब रिजल्ट आएगा, ऑल ऑफ दोज आर गोइंग इन आवर माइंड्स. So I will take you properly as to how you need to plan your day. What are the mistakes that you need to avoid? Now the first mistake that a lot of students make और subconsciously हमारे दिमाग में चलता रहता है that generally you're not able to sleep too well before the exam. है ना, जनरली आप देखोगे कि एक रात पहले आपको बहुत ज्यादा नींद नहीं आएगी. You can't expect yourself to sleep for full 8 hours. अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, but for most of the students एक थोड़ी anxiety kick in करेगी, कल एग्जाम है क्या होगा. So a lot of students feel कि अगर हमें नींद ठीक से नहीं आएगी रात को तो हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है. देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन लाइक दैट. आप एग्जाम फिर भी उतने ही अच्छे से कर पाओगे. सो अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप सोने की कोशिश करो, डेफिनेटली रात को आपको पढ़ना नहीं है, बट इवन इफ यू आर अनेबल टू स्लीप, बी काम. ठीक है, खुद को बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो उस टाइम पर, बिकॉज आपने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर ली होगी. ज्यादा या कम, उससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते, राइट. सो यू नीड टू जस्ट चिल एंड स्टार्ट योरसेल्फ, बिकॉज बेसिकली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एग्जाम कि अब मैं एग्जाम में क्या करने वाला हूं या करने वाली हूं. Second major thing that a lot of us miss is when we reach the exam center. कोई 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा, कोई शायद 3 घंटे पहले भी पहुंच जाएगा, कोई 1 घंटे पहले पहुंचेगा. So we generally see a lot of students studying from their notes on that particular day. While I would not say कि आप बिल्कुल ही मत पढ़ो. अगर आपको लग रहा है कि यार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है और काफी सारा एंग्शियस सा फील हो रहा है, स्ट्रेसफुल सा फील हो रहा है, आप भी अपने हाथ में एक नोटबुक लेकर उसको रीड कर सकते हो. बट इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है कि सब बहुत कुछ पढ़ रहे हैं. Another very important tip that I would like to give here is that do not talk to a lot of people on the exam center because they may ask you a question which you have no idea about and then you will feel कि आपकी preparation अच्छी नहीं हुई है. तो अपने पूरे confidence में रहो, ज्यादा लोगों से बात मत करो उस दिनों उन particular day पर before entering into the exam hall. Now generally it is seen, this is the third mistake that students make, कि आपको exam hall के अंदर, मान लो आपका exam 2 to 4 है, तो आपका 1:30 पर they would ask you to get seated inside the exam hall ताकि वो आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे सके, आप वहां पर बैठ सकते हो. तो वहां से 20 से 25 मिनट एवरीबडी गेट्स आइडल. ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपको कोई बात करेगा आपसे, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड, यू विल नॉट बी अलाउड टू टॉक. सो यू विल नॉट हैव एनी यू कुड से शीट और योर नोट्स इन योर हैंड्स एज वेल. तो दैट इज अ वेरी क्रूशियल टाइम विच काइंड ऑफ मेक्स और ब्रेक्स योर पेपर. उस टाइम हम कई बार इतने ज्यादा एंशियस होते हैं कि हमको लगता है कि यार पेपर अब तो होने वाला है, नाउ दिस इज बिकमिंग अ रियलिटी, नाउ हाउ विल वी डील विद इट. कई बार बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स जो क्लैट को अच्छे से निकालते हैं, वो उस टाइम पर शांति से खुद को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं. यू कैन क्लोज योर आईज, यू कैन थिंक अबाउट हाउ यू गोइंग टू स्पेंड द नेक्स्ट 2 आवर्स, और उसी पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए. आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो, ज्यादा कम, आपको उस टाइम पर कुछ गिल्ट फील करने का कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो आप 20 मिनट में खुद को इतना काम डाउन कर सकते हो जो अगले 2 घंटे 100% आपके काम आएगा. बिकॉज सी इट्स ऑन द एग्जाम डे. आपको अगर अपना 100% पोटेंशियल देना है तो उसमें आपको बहुत काम रहने की जरूरत है ना. कई बार क्या होता है कि एंग्जाइटी के चक्कर में हम लोग थोड़ा एग्जाम तो स्टार्ट ठीक करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आने बंद हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुद को कर्ज करने लग जाते हैं. विच ब्रिंग्स मी टू माय 4th पॉइंट. ठीक है, ये 4th मिस्टेक है जहां पर हम ड्यूरिंग द एग्जाम सोचते हैं कि यार ये तो कहीं पढ़ा था, हमने रिवाइज नहीं किया इसलिए हमें नहीं आ रहा. एंड वी काइंड ऑफ हम मन खुद को कोसने लग जाते हैं, राइट. वी स्टार्ट फीलिंग रियली गिल्टी अबाउट इट. सो वी नीड टू वर्क दैट आउट एज वेल. जो भी आप एग्जाम कर रहे हो ना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको अगर कोई क्वेश्चन आता हुआ भी नहीं आया है तो उस पर यू डोंट हैव टू बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ विद इन दोज 2 आवर्स. 2 घंटे बाद हम खुद को डांट सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे बाद हम अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं,
but not during those 2 hours. Now, fifth and the foremost or a major mistake that a lot of students make is CLAT consortium का जो थोड़ा structure है ना, जो management structure है, that is a little problematic. Because examiners को ठीक से बताया नहीं जाता है as to what do they do on the exam day. तो इस चक्कर में वो लोग क्या गलती करते हैं, कई बार वो स्टूडेंट्स है वो 2 घंटे जो सिर्फ एग्जाम करने के लिए है, उसमें वो OMR शीट्स की जो इन्फॉर्मेशन है या बाकी जो उनको जो कुछ पर्टिकुलर्स भरने होते हैं वो उस टाइम करवाने लग जाते हैं, which waste 2 to 5 minutes of your time. Now, a lot of students who already had lesser time, 2 घंटे बहुत कम होते हैं एग्जाम में करने के लिए, which has 150 questions, वो बहुत पैनिक कर जाते हैं कि हमारे 2 से 5 मिनट और खराब हो गए. सो प्लीज बी रेडी फॉर इट. अब ये पता नहीं होगा कि कौन से सेंटर में पूरे 2 घंटे मिलेंगे, कौन से सेंटर में 115 मिनट मिलेंगे और कौन से में 118 मिनट मिलेंगे. सो यू नीड टू बी रियली श्योर अबाउट दीज थिंग्स दैट अगर आपको 115 या 118 मिनट्स में मिलते हैं तो आप पेपर को कर लोगे. ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है ना करने का कि भाई आप प्रॉपर्ली पेपर करने वाले थे लेकिन आपके वो पहले के 5 मिनट खराब हो गए तो आपका पूरा मोराल ही डाउन हो गया. ऐसे बिल्कुल मत करना. Even if those 5 minutes are wasted, let's hope they are not wasted. But अगर वो वेस्ट हो जाए तो 115 मिनट्स में अपना पोटेंशियल 100% यूटिलाइज करो वहां पे. ठीक है, आपको हो सकता है कि वो 5 मिनट में शायद एक पैसेज किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का आप कम कर पाओगे, तो यू कैन फिगर दैट आउट ड्यूरिंग यू कुड से रीडिंग द पेपर, कि वाइल आप उसको रीड कर रहे हो आप समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा डिफिकल्ट पैसेज लग रहा है. इट इज सम फिलोसफी, सम इकोनॉमिक्स का पैसेज विच सीम्स लिटिल डिफिकल्ट, कुछ पोएटिक टाइप लग रहा है, उसको छोड़ दो, है ना, बाकी सारे पैसेजेस कर लो. तो वो एडजस्टमेंट हम एग्जाम में बनाएंगे rather than thinking too much about it and going haywire, एकदम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा. See, the entire point of making this video has helped you to understand that you need to work at 100% potential in the exam. आपने चाहे 2 महीने पढ़ाई की हो या 2 साल पढ़ाई की हो, it all boils down to 18th December 2 PM to 4 PM. वो 2 PM to 4 PM तब अच्छा जाएगा जब आप इन 5 चीजों का ध्यान रख पाओगे. अगर आप इस 5 चीजों का ध्यान ठीक से रख पाए, आई एम 100% श्योर कि आप अपने पोटेंशियल का 100% दे पाओगे. चाहे आपका पोटेंशियल 60 मार्क्स का ही है, 60 तो लाकर दिखाए ना खुद को. वाई टू गेट स्टक एट 40? तो इसीलिए मेक श्योर कि अगर उस दिन आप अपना 100% दे सकते हो, तो दैट इज समथिंग दैट मेक्स यू अ रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड समबडी हु इज रेडी फॉर एनी चैलेंज दैट्स लाइंग अहेड. And believe me guys, it is average people like you who clear this exam every day. So just stay confident, do your best, and results will show for that. All the best guys, that is it about this on my end. If you like my teaching style, you also know that I've been teaching on Unacademy. I've been taking a lot of lectures in legal reasoning, in current affairs obviously, right? So you can join my classes there. In fact, you can join certain batches. So if you want to join any batch for CLAT 23 or for 24, you can use my code Malpani and get 10% off. I'll be very happy to guide you there for your respective dream NLUs. Thank you so much guys. If you have any doubts, mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer it for you guys. Thanks again.